पूजा जी क्या कहना चाहेंगे व्हाट आर यू फीलिंग दिस लोग आइए आगे लोग आइए जल्दी आइए जल्दी बंगाली सिनेमा जनरली मार रहा हूँ लड़कों के आता है तो अच्छा ही लगता है ठीक है एंड दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रीट डॉग्स मैं भी बहुत ज़्यादा पेट लवर हूँ तो जो भी अपने लाइफ में कभी भी किसी ने पेट रखा हो तो आई थिंक सबके लिए मूवी डेडिकेटेड और जिन्होंने नहीं भी रखा है उनके लिए भी है स्पेशली कि जितने भी डॉग के ऊपर क्रुएल्टी होता है आई थिंक इट्स और ये बंद होना चाहिए तो ये जो फिल्म मेकर है जो हीरो है हमारे विक्रम जो फ्रेंड है सब बहुत ज़्यादा एनिमल लवर है तो इसलिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है मैसेज सो या आप किस तरह से जुड़े हैं मैं किस तरह से जुड़ी हूँ इस मूवी से इस मूवी से दोस्त हैं, जुड़े हैं बट हमारे क्या मैसेज से ले आए हैं और बहुत हम सपोर्टिंग विक्रम मैंने भी अच्छे दोस्त हैं मित्र के लिए आते हैं उनको सपोर्ट करने और यहाँ पे बंगाली है तो चाहते हैं कि मुंबई में बंगाली फिल्म भी चलाया जाए तो यहाँ पर कोई स्पेयर अच्छा सब्जेक्ट है अच्छा टॉपिक है सो हमारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस टू विक्रम एंड द होल टीम ऑफ पारिया थैंक थैंक यू यू नो हमारे पास राइट है टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हम तो बोल सकते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो एनिमल्स हैं वो बोल नहीं पाते पर हमसे वो दुगना तिगना प्यार देते हैं टू एवरीवन सो हम उनसे प्यार ले लेते हैं बट जब समय आता है उनके लिए बोलने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट देम शायद हम उतना नहीं कर रहे हैं सो ये जो फिल्म है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है इट्स टॉकिंग अबाउट stray dogs and someone is voicing and coming आगे to talk about the plight of stray dogs and I really like the concept कि कैसे एक लड़का जो विक्रम प्ले कर रहा है एकदम रिक्लूज है ज़्यादा किसी से बात नहीं करता and then he stands up and finds that one puppy that he is very attached to so it's going to be very intriguing and I'm genuinely looking forward to step inside the cinema and watch it. Vikram Chatterjee, I know him as a professional and I also know him as a person. He's extremely hardworking. I've worked with him on a project which is not out yet and then I get to watch Paria in which he is 180-degree different. So that speaks volumes about Vikram as an actor and how diverse he is. And I'm really excited to go inside and watch the film and then have a heart-to-heart conversation with him. Yes. Yes. You want me to? तो विक्रम और मैंने एक फ़िल्म करी है जो हमने शूट कर ली है उसका नाम है मेमोरी एक्स वो तौथा नहीं बनाई है तौथा की ही पारिया है बहुत कमाल की फ़िल्म है एंड आई वांट टू से इट नॉट बिकॉज आई एम हियर तौथा विक्रम अभिनव उसके प्रोड्यूसर हैं आई थिंक सो दे आर फैब टीम एंड आई एम रियली वेटिंग कि मेमोरी एक्स कब रिलीज़ होगी बट मे आए ऑल्सो से कि कागज़ 2 मेरी अभी रिलीज़ हुई है कल ही हुई है आप लोग प्लीज़ थिएटर्स में जाके देखें थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सेंटर आपको पता है ना गर्ल्स हमेशा साइड पोज देती हैं यस प्लीज थैंक यू I am speechless about this topic because this topic is really very sensitive and very beautiful topic. And nobody has touched this topic till date, and I really wanted from bottom of my heart to speak about this. And these beautiful people are talking about this. I am really happy from inside because we are not talking about glamour here. We are not talking about something in about the country and all things, but this is a different topic where they cannot speak, and I'm so much happy about this. I mean, see, I know him a little bit personally and also like professionally. Now I'm here for him.
he is a beautiful soul, and his debut is like expecting something beautiful from his debut and from him. So I'm really like wishing you congratulations to him. Happy for him. Thank you. Thank you so much. What next project? I think your song is already making a lot of noise. When we get to see it? You're gonna get to see me on 13th. So yes, you all have an invite on 13th, and let's see you there. I mean, you have given me a lot of love for my all the films and videos. I'm sure that you're gonna give me this also, and you're gonna invite the people. Thank you. Thank you. As a leader, obviously getting into indie films now, 2024. I am extremely excited that this is being addressed. I think from when we were young, Bengali films always led their way in speaking of matters which we normally didn't choose to speak about. So I'm so glad that someone like Vikram is on the side of this awareness which he's bringing about, and in mainstream Bengali cinema. Bangla ছবিতে এরকম rare এখন ব্যাপার. So it's really, my eyes will tell you I'm really excited to watch this, and I wish everybody in this country who is not just, worried about this cause, because I think this will extend itself to the horrors of what stray dogs are facing. And I think there's a saying which says that, you can tell a lot about the people by the way it treats its animals. So I think I have said that. And when it is supported by an industry, when it's supported by such wonderful makers and an actor of his stature, I think things are very exciting. And I'm sure it must be a different feeling to watch a Bengali film. Absolutely. Absolutely. I watched the trailer so many times, and all goosebumps, because, Bengali film doesn't necessarily mean sentimental, mushy, and I love the fact that this is looking edgy and it's shot so well, cast so well, and I can hardly wait. Thank you so much. Thank you, everyone. So hello everyone. I'm so happy to be here for the release of this fabulous film, because हम लोग सब जानते हैं, जैसे कि हम लोग के सब किसी के पास तो डॉग्स रहे होंगे, कैट्स रहे होंगे, स्ट्रेज रहे हैं, एनिमल्स रहे हैं, और हम लोग अपने जीवन को इतनी तेज़ी की रफ्तार में चला रहे हैं कि जिस जन्म से कभी हम लोग आए होंगे, हम लोग भी कभी कुत्ते बिल्ली बन के आए होंगे, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं. और ये फिल्म एक आई ओपनर है, एक जगह है कि हम लोग थोड़ा सा थम जाए, हम लोग अपना जो ये मनुष्य जन्म है उससे थोड़ा सा काम डाउन होके हम ये देखें कि हमारे नीचे नीचे जो चार पैर के जो जीव चल रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ हम कितना अन्याय कर रहे हैं. स्ट्रेज हैं, हम लोग देखते भी नहीं उनकी तरफ. अगर हम थोड़ा सा सोचें एक क्षण के लिए, हर पर्सन एक एक कुत्ते की जिम्मेदारी ले, एक एक जानवर की जिम्मेदारी. अगर हम जान से नहीं कर सकते, पैसों से, किसी तरह से हम अपना ह्यूमन होने का, हमारा मनुष्य होने का हम कर्तव्य कर सकते हैं. और ये विक्रम बहुत अच्छे अभिनेता हैं, हम जानते हैं उनको क्योंकि हम भी बंगाल से हैं. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे कलाकार हैं. और बॉम्बे में ऐसा एक नया चेहरा आ रहा है, तो उनके लिए स्वागत है. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक्चुअली सच बताएं तो आजकल इस तरह की स्टोरियाँ आ रही हैं. साउथ में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, लेकिन ये वाली फिल्म जो है इसकी स्टोरी और भी दहलाने वाली है, क्योंकि यहाँ कुत्तों को मार के उनके मीट को बेचा जाने वाला स्टोरी शायद पहली बार किसी फिल्म में दिखाया गया है. लेकिन यहाँ यहाँ से बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ कुत्तों को मार के उनके गोश्त को बेचे जाने वाला जो बिजनेस चलाया गया है उसको पहली बार
दर्शाया जा रहा है। और आप लोग को बता दें ये एक ज्वलंत सब्जेक्ट है क्योंकि ऐसा होता है। मैं पिछले 23 साल से जानवरों के साथ, कुत्ते बिल्लियों के साथ काम कर रही हूँ। हम लोग डरे रहते हैं आजकल क्योंकि हमारे एरिया के 4 पैर वाले बच्चों को खा ले जाते हैं। उनके साथ यही होता है, जो कबाब कॉर्नर्स पे सस्ते कबाब खा लेते हैं ना, वगैरह वगैरह। ज़रा देख के खाइएगा कि क्या खा रहे हैं। अगर आपको देखने का, जानने का अपने लिए शौक है तो। विक्रम बहुत ही अच्छा एक्टर है। वी हैव डन मेनी एक्टिंग इन बंगाल और आई थिंक बॉम्बे में भी वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली। वी हैव डन मेनी सीरियल्स एंड ऑल, गुड फ्रेंड ऑफ अस एंड बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस फिल्म में। तो बहुत अच्छा काम अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा है किया। मैं पहली बार उनका काम देख रही हूँ। मैंने सिर्फ एक सोशल मीडिया पे इस फिल्म का प्रोमो देख के उसको शेयर किया था क्योंकि जहाँ भी जानवरों की बात होती है वहाँ मैं अपने आप को समझती हूँ मेरी ड्यूटी है कि मैं शेयर करूँ, जागृत करूँ। क्योंकि आप लोगों को शायद आप लोग अभी तक जागृत नहीं हुए हैं कि जानवरों और इंसान दोनों के लिए है ये जगह, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। हम जो ये जगह हड़प के मल्टी स्टोरी टावर्स बना रहे होते हैं, वो ज़मीन जो है वो जानवरों की है। लीगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जहाँ वो पैदा होते हैं 4 पैर वाले जानवर, वो उनका घर है, सिर्फ हम इंसानों का नहीं है। हम जो स्विमिंग पूल्स, पार्किंग प्लॉट्स वगैरह बना देते हैं, फिर उनको लात मार के, उनको जान से मार के, जहर दे के भगाते हैं, वो गुनाह है, वो गुनाह है इन लॉ। बट चूँकि हमारे देश में जानवरों के प्रति लॉज अभी तक बदले नहीं है, अभी तक सिर्फ 50 रुपये फाइन है। कौन डरेगा? आप डरेंगे? आप पता नहीं कितने चॉकलेट्स खरीद के बांट देंगे उन 50 रुपयों में, इसलिए कोई डरता नहीं है। आज भी निरीह जानवरों पर अत्याचार होता है। कहते हैं मैं जो हूँ जया भट्टाचार्य, मुंबई में हूँ पिछले कई सालों से। बंगाली तो ज़्यादा नहीं है, बंगला बोलने की आदत छूट गई है। ठीक वैसे ही हमारे लोगों में, हमारे इंसानों में कंपैशन, मॉरल्स की आदत, मॉरल्स को और कंपैशन प्रैक्टिस करने की आदत छूट गई है। क्योंकि कहते हैं ना, पहले के लोग बोल गए हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती हैं, लेकिन हमारे जड़मती जो है और भी अनजान हो गए हैं, हमारे जड़मती और भी शैतान हो गए हैं, जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म जिसका नाम है पारिया। पारिया मतलब भारतीय कुत्ता। भारतीय कुत्ते की नस्ल को पारिया कहा जाता है। किसी को शायद पता नहीं होगा। साग का कुत्ता बोलते हैं। इट इज ऑल्सो ए ब्रीड। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारे पास बहुत ताकत है, वो ईश्वर ने दी है कि हम ईश्वर की बनाई हुई बाकी कृतियों की देखभाल करें, फिर चाहे वो पेड़ हो, चिड़िया हो, चाहे जानवर हो। लेकिन हम उस दायित्व को निभाते नहीं हैं। हम जड़मती हो गए हैं। हम सिर्फ अपना देखते हैं। लाओ भाई लाओ, भगवान के पास जाते हैं तो सिर्फ भीख मांगते हैं कि मुझे और सक्षम कर दो। हम में से कितनों ने जाके भगवान से बोला है, भगवान डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिर्फ इतना बोला है कभी? यहाँ सिर्फ इतना बोला है? वो इंसान जिनको मैं नहीं जानता बिल्कुल भी, उसकी मदद कर दीजिए, ऐसा किसी ने किया है? हम सिर्फ बार्टर सिस्टम करते हैं। हम दे रहे हैं प्रसाद, हम दे रहे हैं लड्डू, फूल, हमारा भला कर दो। निरीह जानवरों को सिर्फ उन दिनों को खिलाते हैं जिस दिन बोला जाता है कि इस दिन खिलाने से हमारा भला होगा। ऑल गुड सर, कैसे हो सब लोग? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Yeah, firstly, I would like to thank everyone who's here. Thank you so much. आप लोग सब अपना टाइम निकाल के आए हो सर. And secondly, yes, Paria has been doing extremely well by God's grace, and the audiences have blessed us with back-to-back multiple houseful shows over the last 4 weeks. ये कलकत्ता में हमारा चौथा weekend चल रहा है, and we have got a lot of love, because of which we finally thought that this film should be traveling across India. And this Friday we have had a release across all the major cities: Bombay, Navi Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Guwahati, Pune, Ranchi, and hopefully some more in the coming weeks. Feeling extremely blessed. The film has been made with a particular intention in mind. If you all are aware of the subject, then the film talks about
the right for every living being on this planet to breathe, to live as freely as we human beings do. जो आई थिंक हमारे लिए और हमारे टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि हम इंसान हैं, हम जी रहे अपने हिसाब से, बट बाकी जितने भी और जानवर हैं जो लोग हमारे साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको भी हमारी तरह बचने का इक्वल दे हैव द राइट टू लिव जस्ट लाइक वी ह्यूमन बींग्स डू. और हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको वो राइट है नहीं कि वो लोग हमारी तरह बचे विथ रिस्पेक्ट. वी कम अक्रॉस सेवरल इंसिडेंट्स वेयर एनिमल्स आर tortured, be it dogs, be it cows, be it any other animal, and we have tried to create a film wherein we speak about the fact that these animals have equal rights to live on this planet, because जिन्होंने बनाया था उन्होंने तो सबके लिए बनाया था ना, हमारे लिए नहीं बनाया था सिर्फ. तो that is what we are trying to express through the film that we have made here. करेक्ट सर, हमने स्पेशली देखा था कि लॉकडाउन के राइट बाद हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल पारिया जो वर्ड है ना सर, ये वर्ड इंडियन डॉग्स को बोलते हैं. मतलब जिनको हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर रास्ते पे देखते हैं. आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग इनको घर पे भी ला रहे, घर पे पाल रहे, बस ज़्यादातर जिनको हम रास्ते पे देखते हैं ना, उस डॉग्स को पारिया डॉग्स बोलते हैं, इंडियन पारियास. जैसे ब्रीड्स होते हैं ना, जैसे लैब्राडोर्स होते हैं, जैसे गोल्डन रिट्रीवर्स, जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, वैसे जो हमारे अपने हैं ना, जो हमारे देश के, उनको हम लोग पारिया बोलते हैं. तो जैसे हम इंसान बोलते हैं कि वी आर प्राउडली इंडियंस, वी ऑल आर प्राउडली इंडियंस, राइट? हम सारे हैं ना सर. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुत्ते भी हमारे देश के, दे हैव द राइट टू लिव इन आवर कंट्री प्राउडली. लेकिन उसके जगह पे जैसे आपने बोला, ऐसा बहुत देखा जाता है कि लोग घर पे लेके आते, कुछ दिन बाद उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है, फिर रास्ते पे छोड़ देते. ये स्पेशली हम लोगों ने देखा था कोविड के ठीक बाद राइट आफ्टर कोविड. मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने हर शहर से, सिर्फ कोलकाता से नहीं, हर शहर से ये रिपोर्ट करना चालू किया था कि घर पे लेके गए थे, उनको पालना था कुत्ते, और उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग सब बिजी होने लगे अपने अपने काम को लेकर, दे स्टार्टेड लेटिंग दीज डॉग्स आउट ऑन द स्ट्रीट्स. तो सडनली हमको रस्तों पे ऐसे विदेशी कुत्ते दिख रहे थे, इंपोर्टेड ब्रीड्स दिख रहे थे, हमारे इंडियन पारियास छोड़ के. और मुझे लगता है जब हम लोग कोई भी लिविंग बींग को घर पे लेके आते हैं ना सर, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं, तो वो हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं उसके बाद. तो जैसे हम लोग फैमिली को रास्ते पे नहीं छोड़ सकते, वैसे उनको भी नहीं छोड़ सकते. ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड वी आर ह्यूमन बींग्स. ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मच्योर हैं, हमारे दिमाग में वी हैव मोर मच्योर ब्रेन्स देन लॉट ऑफ अदर एनिमल्स. तो सर ये इंसानियत की पहचान अगर हम लोग नहीं देंगे तो और कौन देंगे? See sir, I belong to a family जहाँ पे I've seen my mother and my sister working for dogs and other animals for the last 20-22 years. पिछले 20-22 साल से देखे जा रहा हूँ मैं, और बहुत बेसिक काम करते वो. फॉर एग्जांपल खाना देना, या अगर उनको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन देना, किसी को अगर कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए तो. और मुझे लगता है ये हमारे तरफ से ना बहुत बेसिक काम होता है, क्योंकि सिर्फ कुत्ते नहीं, कोई भी जानवर वो अपना मेडिकल रिक्वायरमेंट खुद नहीं समझ सकते, वो नहीं ख्याल रख सकते. तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं अपने आंखों के सामने कि कहीं पे किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, और अगर हम लोग कर पा रहे, देन आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. और मैंने बहुत रिसेंटली देखा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो हमारी तरह बिलीव करते कि जानवरों को खाना देना और उनका सेवा करना, उनको मेडिकल हेल्प देना, ये पुण्य का काम है. वी आर ऑल डूइंग दैट बिकॉज आई थिंक पर्सनली कि अगर मैं ये काम कर पाऊँगा, चाहे वो इंसान के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, तो मुझे ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी. So that is exactly what I have been seeing in my own family with my mother and my sister. And with a film like Pariya, we are really keeping our hopes very high कि ये फिल्म बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सके जैसे हम लोग पहुंचा रहे, और आप सब भी हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं आज पहुंचाने में, ताकि ये मैसेज हम लोग पुट अक्रॉस कर सके कि अगर आप किसी और का भला कर रहे हो तो उससे आपका भला होगा, कुछ ख़राब तो हो नहीं सकता. नहीं, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारा प्यार मिला है. इनफैक्ट नेशनल इंडस्ट्री से भी जब हमारे फिल्म का ट्रेलर आया था तो बॉबी देओल सर हैड पोस्टेड फॉर अस ऑन इंस्टाग्राम, विच वाज वेरी काइंड ऑफ हिम. इनफैक्ट मैं आज सुबह देख रहा था ट्विटर पे, रूपाली मैम, शी इज़ अ बिग पर्सनैलिटी ऑन टेलीविजन, शी हैज़ ट्वीटेड, देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल स्पीकिंग वेरी हाईली ऑफ द फिल्म. Srijit Mukherjee is a Bengali director who has also done a lot of work here in Bombay.
he has been speaking very highly of the film. We have been getting a lot of love from our superstars back in Bengal. Jeet, who is one of the biggest superstars in the city, he came and launched a trailer for us. Dev, who is the other superstar back in the city, he launched a teaser. So हम लोग बहुत fortunate है सर कि शायद सब्जेक्ट ऐसा था कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए, और क्योंकि ये सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी का है, दिस सब्जेक्ट स्पीक्स अबाउट अदर एनिमल्स, स्पीक्स अबाउट डॉग्स दैट वी ऑल लव सो मच. आई थिंक इसीलिए शायद हमारा जो कनेक्ट है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो पाए अब तक. थैंक यू. श्योर. अब मैं इतना बोलना चाहूँगा बस कि फ़िलहाल पारिया 1st of March, which is yesterday, has released all across the major cities in India, which is a moment of pride for the whole team, including me, my producers Abhinav and Prateek, my director Tathagoto, who has not been able to come here because of his prior commitments back in Calcutta. बट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोमेंट है, क्योंकि हमने जब फिल्म बनाया था हमको लगा था कि ये ऐसी फिल्म बनाई है हम लोगों ने जो सिर्फ बंगालीज रिलेट कर पाएंगे या फिर वेस्ट बंगाल रिलेट कर पाएगा, ऐसा नहीं है. हमको सच में लगा था कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया भर में कोई भी इंसान रिलेट कर पाएगा, और हम धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं. हमने अक्रॉस इंडिया रिलीज़ किया. I really hope that the film is accepted very well, and we would try to ensure that the film reaches a bigger audience after that. We have also made a small Hindi film which is hopefully releasing sometime next year, or sometime this year rather, जो मेरी पहली हिंदी पिक्चर होगी. It's called Memory X. I'm a part of the leading cast. Along with me there is Mr. Vinay Pathak in that. There is Smriti Kalra, जिनको आपने हाल ही में कल रिलीज़ हुआ उनका फिल्म कागज़ 2 में देखा है. She's there. She's a friend. She's here. And I think God has been very kind, and the audience has been very kind. That's Smriti. Hi. Her film Kagaz is released all across India. It is released on the same date, the 1st of March. Yes. Yeah. And it's a pleasure that we both have a release on the same day. Yeah, and it is. I just messaged him that Vikram, now you've come to Bombay. Yeah. Now get ready to rule Bombay. By God's grace, thank you. But for the time being, I would wish her all the best with Kagaz 2. I really hope it does exceedingly well. बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं Kagaz 2 के. और जब भी हमारा फिल्म आएगा Memory X, जिसमें हम दोनों ने एक साथ काम किया है, बहुत ब्लेस करना हम लोगों को. Give us a lot of love for that. Thank you so much. We'll take your leave. Thank you so much, everyone. Thank you. Thanks. Thank you so much. Bye. All the best. All the best. हाँ. দেখুন কিছু বলুন বলা হয়ে গেছে আমি আর কি বলবো এক্সট্রা This is on behalf of the team, sir. This is Ronojoy. Ronojoy has composed our music. सारे गाने इसके अपने गाने, जिनमें से जो हमारा टाइटल ट्रैक है वो सोनू निगम सर ने गाया था. We are very grateful to him that he has given us his voice. Yes. And the BGM of the film, which is also one of the high points of the film, has also been created by him. And मैं उनको आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा, and I'll take a leave from you right now. Thank you so much, sir. Thanks. Thanks. This is Paria will be an unforgettable experience for me because first of all, this is the first time I am working with Sonu ji, the legend, and it's a completely different kind of song. The kind of song I have made in the past, the kind of song I have known for. Paria's music is entirely different from that, and Paria is a very intensive, gritty, dark film which required a very dark kind of soundscape and dark kind of songs also. So in that scape, this is the first time I have made music in that scape, and Sonu ji has lent his voice for the title song. It's an absolute pleasure of ours, and he has done outstanding job. He has done, he's always brilliant. And there are a few songs, and the entire background score is composed by me, and the entire background score is very much like it goes hand in hand with the film, and it elevates, or like it kind of take the narrative forward. So that's why I am very much excited what you people in Bombay reacts to the songs and background score and reacts to the entire film. I am really hopeful, and thank you so much for being there. This is the title song of the film, sung by Sonu Nigam, lyrics written by Ritam Sen, and music by me. Bhenge kore churmar
ছিঁড়ে করে খান খান পিছু হটে শয়তান দোলে রে দুনিয়া শিকলেরই ঝনঝন চিরে করে গর্জন ভয় কাঁপে দুশ্মন এসেছে পারিয়া খুনে রাঙা দরিয়ায় ফিরে আসে বদলা নিতে নিশানা চিনে একা করে বাজিমাত আসে ছক উল্টে দিতে সাথী করে হাতিয়ারকে সে পারিয়া ওই দাঁড়িয়ে দাবানলে সে পারিয়া সব জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে চলে। That's it. Thank you so much.